So far what we have done, I'll just not recap, just recap the formula, lens formula. Oh sorry, mirror formula, lens formula भी करेंगे. Class 10 science, chapter 10 light. Okay. So far mirror formula has been completed. And what is mirror formula? Mirror formula is 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F. Right? Next formula is magnification. Good evening, sir. Hi guys, good evening. Karthik Suroy, good evening. Achintya, good evening. Achintya, I missed the important class yesterday. I hope you have watched the video after that. Yes, yes. देखा वीडियो देख रहा पक्की बात ये Yes, sir. वीडियो ओके चलो आज प्रैक्टिस करेंगे इस पूरे चैप्टर में जो मैक्सिमम जो जिस्ट है जो मीट है जो इसका टारगेट हमारा है वो न्यूमेरिकल से बिकॉज सबसे ज्यादा मार्क्स न्यूमेरिकल लेके आएंगे थ्योरी तो बहुत कम मार्क्स के आएगी 1 मार्क 2 मार्क इस टाइप के न्यूमेरिकल इस तरह टाइप के आएंगे आई जस्ट सो mirror formula we have seen 1 upon v plus 1 upon e is equal to 1 upon f and now we are talking about magnification में हमने क्या बात करी थी the image can either be same size or it can be magnified or it can be diminished or reduced. याद रखने का तरीका डिम का मतलब हल्का होता है लेसर diminished. Okay, so what is the magnification formula? Magnification will be equal to height of the image upon height of the object. HI stands for height of the image. HI is equal to height of image and H is equal to height of object. Okay, Rajvardhan, if these two are equal, M will be equal to? Yes, sir. If HI is equal to H, M की क्या वैल्यू आएगी? M is equal to? M is equal to 1. So if M is equal to 1, it means same size. I think your dog is also taking interest in science. Same size. But if M is less than 1, so diminished. And if M is more than 1, magnified. But there's a catch here. I'll just tell you what is the catch. Also remember, the formula of M can also be written in the form of V and U. M is also written as minus V upon U. This is the complete formula. Right? We know V U क्या है. Okay. Now I'll just give you a छोटा सा गुरु मंत्र, छोटी सी summary, and the summary is Excuse me, sir. yeah. सर ऐसा होता है कि m is more than 1 तो फिर हाँ होता है. सर इमेज मैग्नीफाइड हो जाएगी तो सर मैग्नीफाइड हो जाए जितना ज्यादा होता जाएगा उतना मैग्निफिकेशन भी उतना बढ़ता जाएगा. बढ़ता जाएगा. अभी जैसे हमने मैं पहले वो फॉर्मूला कर दूं उसके बाद आई ड्रॉ द डायग्राम एंड शो इट टू यू. Okay. See, if M is positive, your image will be virtual and erect. If M is negative, your image will be real and inverted. ओके थोड़ा सा इसकी गहराई में जाऊंगा अभी 2 मिनट रुको. ओके ये हो गया.
Okay, one more thing. अब यहां समझने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर देखो, when I said diminished ना, diminished is when m is less than 1 और m is more than 1, बट यहां पे हम m की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। इफ m is equal to -7, it means image is real, inverted and 7 times bigger, 7x bigger, 7 times bigger. If m is +5, we will say image is, एक सेकेंड रुक जा विराज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड, ओके थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, जस्ट and 5 times larger. ऐसा क्यों होता है? सर -7 में भी बिगर था और इसमें भी सर बिगर होगा। इसमें भी बिगर है, इसमें रियल इन्वर्टेड है। एक मिनट, हाँ एक मिनट विराज, वेट, रियल इन्वर्टेड एंड 7 टाइम बिगर, -7 का ये मतलब। ओके, अब बताओ तुम्हारे सर तो इमेज छोटी नहीं होती कभी भी? इमेज छोटी भी होती है इफ द, सर तो अगर माइनस और प्लस दोनों में बड़ी हो रही है तो छोटी कब होगी? मैं बताता हूँ। इफ m, so if you remember there is something called absolute value. if तुम्हें याद है इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 होती है, everybody remembers this? So yes. if the absolute, और साइन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का ये, if absolute value of m is less than 1, then image is smaller. If the absolute value, so here we are talking about the absolute value of m. अब यहां देखो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है भव्या? व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7? सबको पता होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, यार इंटीजर्स में सिखाई जाती है 6th क्लास में। तो सर अगर डेसिमल में कुछ भी होगा तो स्मॉलर हो जाएगा? एनीथिंग लेस देन 1 इज स्मॉलर। ओके सर, राइट गाइस, सबको याद है एब्सोल्यूट वैल्यू? प्रथम, रवि, यस सर। बस साइन हटा देते हैं उसका, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज इन प्लस। ओके, अब देखो, अच्छा चलो अभी इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन कराता तो अपने आप बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहां तक क्या हो, अब क्या हमारे पास पॉसिबल, अब क्या गेम खेल सकते हैं हमारे साथ ये, जब हमारे को ये क्वेश्चन कराएंगे ना, न्यूमेरिकल देंगे, देखते हैं हमें क्या क्या कर सकते हैं हमारे साथ ये। देखो what all can be done to us? There are टोटल प्ले अराउंड के लिए कितनी चीजें हमारे पास है? हमारे पास u है, हमारे पास v है, देन हमारे पास m है, हमारे पास hi है और h। इतनी चीजें हैं बस टोटल मिला के, टोटल एब्सोल्युटली दीज 5 थिंग्स आर देयर विद अस। एक और है, सॉरी मैं भूल गया, f है, f। बस इतनी बात ध्यान रखनी है हमें कि f इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स एंड नेगेटिव फॉर कॉन्केव। हमें ये भी याद रखनी है कि u इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि u is always placed in front of the mirror and anything which is facing the shiny side is my negative. This is how it works. p यहाँ पे होता है हमेशा, इस साइड में सब कुछ पॉजिटिव होता है, इस साइड में नेगेटिव होता है, चाहे मिरर ऐसा हो चाहे तो मिरर ऐसा हो, फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब ये चीजें हैं, इनका साइन अपने आप आएगा इनका साइन, बाकी का साइन। ओके,
अगर हम लोग, और हमारे पास फॉर्मूले कितने हैं देखो, तो हमारे हेल्प करने के लिए फॉर्मूले कितने हैं? फॉर्मूले है, नंबर 1 फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। और नंबर 2 फॉर्मूला कौन सा है? m इजकल टू hi/h और माइनस v/u। ये दो फॉर्मूले हमारे को है। बस जो कुछ भी हमसे मांग रहा है ना, हमें इसमें से मिल जाएगा दोस्तों, देख लेना तुम लोग। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं पहले। बेस्ट से। अच्छा, अब बताओ, कोई विराज को डाउट वगैरह है तो बताओ। नहीं सर। पूछ रहा था मेरे से, है मिल गया? ओके, क्लियर, राइट। यस सर। ओके दोस्तों, फटाफट से एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और चलते हैं। Okay, I'll just read the question in the chat box. Guys, you guys try to do this. दो मैं जल्दी मैं कर दूंगा, मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा सिर्फ क्वेश्चन के लिए। ओके, जब वेट करना है। So you are not Sir, you are audible. not audible. Sir, you are not audible. So So we can hear you, sir. you are not audible. Okay, this is the question. Oh, मैं जानबूझ के म्यूट किया था, just so that I can give you the question. Okay, guys, just see if you, how you will do this question. हाँ जी, देखो। All right, just try doing this. कोशिश करो। I'm sending a line. Once you have done, please write D. Okay, Pratham, anybody else done? All right. I think 4 people have done it. Anybody else? सात्विक, ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताओ मेरे को। ओनली, ओके, चल ठीक है, टाइम वेस्ट करेंगे। आंसर पोस्ट करो, पोस्ट द आंसर।
ओके, जब भी तुमसे डिस्टेंस मांगेंगे दोस्तों अपना साइन लगा के देना, साइन के साथ देना। सर तो माइनस में आएगा आंसर, -48 होगा। पता नहीं, देखते हैं अभी, मैं कर रहा हूँ अभी क्वेश्चन को। ऑलराइट, सर मेरा तो प्लस में है। ओके ठीक है, राइट। मेरा भी प्लस में। कोई बात, कोई इशू नहीं, कोई जरा सा भी इशू नहीं। हाँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ दो, एक बार कार्तिक सिरोही क्वेश्चन पढ़ दें एक बार। Yes, sir. An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave बस mirror. होल्ड। सो u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। भाई लोगों कोई टेंशन तो नहीं? कार्तिक है, राजवर्धन, सार्थक, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, No doubt, sir. कार्तिक सिरोही कंटिन्यू प्लीज। Yes, sir. It form a real image 4 ओके, times larger. वेट, जैसे इसने बोला रियल इमेज, जैसे इसने बोला रियल इमेज, यहां पे अपने को नेगेटिव साइन लगाना है। जैसे ही बोलता है रियल, रियल मतलब नेगेटिव, और जैसे ही बोलता है वर्चुअल, वर्चुअल बोले तो पॉजिटिव। तो इसने बोला रियल इमेज मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन रियल इमेज है तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन है। ओके, इतना हाउ मेनी टाइम्स? So 4 4 times larger. 4। सो m इज इक्वल टू -4। ओके, और क्या दिया है? Calculate the Sir? distance of the image from the mirror. ओके, v निकालना हमें, बस इतना सा क्वेश्चन है। सर m-4 नहीं होगा? m-4 होगा ना, क्योंकि रियल इमेज हमेशा नेगेटिव होती है। सर लेकिन उसमें लिखा है 4 टाइम्स ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स है, बट रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव, रियल इमेज इज ऑलवेज ओके सर। नेगेटिव। नाउ सो फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू -v अपॉन u, -v अपॉन u। सो -v इज इक्वल टू m इंटू u, और v इज इक्वल टू -u इंटू m, और माइनस इनसाइड। सी, -12 into -4 is equal to v is equal to minus and minus, when they multiply, same signs multiply, give you positive result always। तो 12 4 जा 48, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, so v is equal to 40 minus 48 centimeters। let us do one more question, one more question। okay, Shiru sir, yeah, so what if it says it is a real and erect image? real will never be erect। Alright sir. okay, see, why I just now I am getting you back। अचिंत्य को वापस, अचिंत्य प्लीज पे अटेंशन। स्फेरिकल मिरर्स की कितनी इमेज बन सकती है एक बार देखो अचिंत्य। इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स देखो कितनी सारी बन सकती हैं, चेक करो। पहले देख लो कॉन्वेक्स, कॉनकेव को, कॉनकेव की कितनी इमेजें देखो। पहली है इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, यहां पे बनती है एफ पे, दिस इज पी, दिस इज एफ एंड दिस इज सी, तो इस पे बनेगी। सबको पता है ये रियल, और रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, हाईली डिमिनिश होती है, ठीक है। सो रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। नंबर 2, सी और इंफिनिटी के बीच में बनती है, ठीक है। तो वो हमारा चेन तो सिस्टम तुम्हें याद ही होगा, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है, आर एंड आई। ये कहाँ बनेगी? जब इसको तुम पीछे पुश करोगे तो इमेज यहाँ आ जाएगी, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है, सी वाली तो रियल इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, ये इन्फिनिटी पे बनेगी जाके, वो भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी एंड हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। एक सिर्फ ये इमेज होती है जो कि यहां बनती है, और ये होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। विराज, देन यू सी कॉन्वेक्स। Understood sir.
कॉन्वेक्स के अंदर सिर्फ दो इमेजेस बनती है, सी एफ एंड पी। जो इन्फिनिटी पे होता है उसकी कहां बनती है, यहां बनती है एफ पे। ओके, एंड दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। और दूसरी बनती है इन्फिनिटी और पी के बीच में, जो भी ऑब्जेक्ट जहां भी होगा उसकी इमेज बनेगी एफ और पी के बीच में, एंड दैट इज ऑलवेज वर्चुअल क्योंकि मिरर के अंदर है, एंड इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, डिम। टोटल 8 इमेज बन रही है यार, कहीं भी इमेज देख लो, या तो आर एंड आई होगा या वी एंड ई होगा। अचिंता समझ में आया? अंतरिक्ष में समझ में आया अभी? यस सर, समझ गया। हाँ, Yes, रवि, sir. कार्तिक है साथ में? यस ये जो मैंने 8 है, ये 6 इमेज में अब तक मैंने रटा दिए, मेरे ख्याल से तो मैंने अपनी तरफ से खूब अच्छे से समझा दी तुम्हें। 8 बन सकती है, वीडियो देखो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और प्रैक्टिस करो थोड़ी सी। जब तो अपने हाथ से ड्रॉ नहीं करोगे ना तब तो बात नहीं बनेगी। ओके, सर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट होती है क्या, कि बस नंबर? नहीं, सी व्हेनेवर देयर इज अ रेशियो देयर इज नो यूनिट। जब भी रेशियो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये रेशियो है, जैसे रेशियो ऑफ हाइट एंड हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस। Okay. Now, right. Next question I am I'm just typing it. I'm speech to text कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए म्यूट हो रहा हूँ। Yeah, this is your question. मैग्निफिकेशन निकालना मिरर का। सर, इमेज का टाइप क्या है? इमेज का टाइप नहीं पता, वो हम पता कर लेंगे, हमसे वो मैं बता दूंगा एक बार, तुम लेकिन सिर्फ मैग्निफिकेशन निकाल लो विद साइन, देन आई विल टेल यू व्हाट विल यू टाइप। Sir, can we post the answer, sir? या सॉरी Sir, can we post the answer? कैन बी पोस्ट? ओके, एक मिनट, डन। किस किस का डन हो गया? एक मिनट होल्ड। नथिंग स्पेशल 4 लिख दिया, पता नहीं इन्होंने क्यों। अंतरिक्ष भार्गव डन, विराज डन। ओके गाइस, let me just give me a moment. What's the answer now? Okay. Right, Achintya, can you read the question? Sir, Yeah, please read the question. an object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror. एक It मिनट, hold. U is equal to -12. No problem. Achintya, Yes. no Yes. problem. Anybody? No. U is minus. Yeah. Okay, next. A concave mirror, it Yeah. forms a real image 4 times larger than the object. Calculate the distance of image from the mirror. Sir, I believe this is not the question. अरे भैया, ये तो तुम तो पुराना क्वेश्चन Yes, पढ़ रहे हो sir. दादा। सर, अच्छा, -12 कैसे आ गया? हाँ वही कह रहा हूँ मैं, गड़बड़ कर दी इन्होंने। ओके, या Sir, 24 centimeter distance है, 6 centimeter image. If the object distance for a concave mirror is 24 centimeter and the image distance is 6 centimeter in front of a mirror, then find the magnification of the mirror. ओके, इफ द डिस्टेंस इज हाउ मच? एक बार दोबारा पढ़ना क्वेश्चन को। If the object distance for a concave mirror
is 24 centimeter and the image distance is 6 centimeter in front of a mirror, then find the magnification of the mirror. ठीक है, दोनों के दोनों मिरर के फ्रंट में है दोस्तों, दोनों के दोनों मिरर के फ्रंट में। सो u इज इक्वल टू -24, v इज इक्वल टू -6। वी हैव टू फाइंड m। m का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। सो m इज इक्वल टू -v अपॉन u। ऑलराइट, लेट अस सी। So m is equal to -v upon u is equal to -6 upon -24 is equal to -6 upon 24. 6 1 जा 6, 6 4 is equal to -1 upon 4. Alright. अब देखो कितनी चीजें पता चलेंगी मेरे को इस -4 से। Okay. Firstly, if I answer is magnification is -1 upon 4. Answer. Nature of image पूछेगा अभी। जैसे आया नेगेटिव, just say real. So negative means real and real means inverted. Now let us see absolute value क्या है इसकी। -1 upon 4 की absolute value क्या है? 1 upon 4। यार ये absolute value सबको क्लियर है ना? पॉइंट तो छोटी क्लास में सिखाया Yes, sir, जाता है छोटे clear. बच्चों को। -8 की absolute value निकालो तो बोलता है 8, यानी साइन हटा देते हैं। +8 की absolute value निकालो 8। ओके, सो -4 की absolute value जब मैं निकालता हूं -1 upon 4 की, इट इज 1 upon 4 और 0.25। सो दिस इज डिमिनिश्ड, छोटी हो गई इमेज। ऐसे निकलेगी नेचर। ये नेचर का क्वेश्चन सर ज्यादातर 80% स्टूडेंट का गलत होता है। नेचर वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं, बट मैं तुम बहुत आसान रास्ता बता रहा हूँ। जैसे ही नेगेटिव आया मैग्निफिकेशन, रियल लिख दो, रियल लिखते इन्वर्टेड लिख दो, और फिर देखो मैग्निफिकेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है। अगर 1 से कम है तो डिमिनिश्ड है, और 1 से ज्यादा है तो मैग्नीफाइड है। सर हम इसको -1 upon 4 पे ही नहीं छोड़ सकते? इसमें हाँ लिख सकते, बट ये तो मैं तुम्हें सिखाना था ना, तुम लोगों को टीच करना था कि ये अगर पूछेगा नेचर ऑफ कैसी, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट मैं बताया तुम लोगों को, अगर नेचर पूछता है तो हमें इस तरह से करना है। इसके 1 2 और क्वेश्चन कर लेते। रिफ्रैक्शन आई वांट टू स्टार्ट टुमारो, बट लेट्स डू नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, बिकॉज मेन जो मार्क्स तुम लोगों को मिलने वाले एग्जाम में इन न्यूमेरिकल्स के मिलेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 4 मार्क्स का भी आ सकता है। सो लेट अस जस्ट डू अ लिटिल बिट वर्क हियर। मैं फटाफट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तुम लोग करके दिखाओ मेरे को। ओके, इसके अंदर मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फटाफट क्वेश्चन दे रहा हूँ। जस्ट डू दिस क्वेश्चन। या डू दिस क्वेश्चन। जल्दी करो, जल्दी करो। आज की अच्छी से प्रैक्टिस कराते हो, और साथ में पकड़ना शुरू करूंगा किस किस को नहीं आ रहा क्वेश्चन। इससे हो जाएगा। Shall we post the answer, sir? अभी नहीं, 1 मिनट होल्ड कर। मैं पहले लाइन भेज रहा हूँ, डन जिस चीज का हो गया वो बताना। विराज डोंट पोस्ट आंसर। जिसका हो गया भाई लोग बताओ प्लीज।
ओके, विराज, अंतरिक्ष, प्रथम. व्हाट अबाउट अदर्स यार? हाँ भाई, राजवर्धन, अचिंत्य, राजवर्धन. Yes, sir. मैं क्वेश्चन कराऊंगा सबसे, नहीं तो मैं सिखाऊंगा करना, बट ये नहीं होगा चुपचाप बैठे हुए एक साइड में. TCL में ऐसा नहीं होता. सर ये मिरर फॉर्मूला से ट्राई करो. मेरे फॉर्मूला से ही करना, और कौन सा ट्राई करना है? एक ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, मैग्निफिकेशन की तो बात ही नहीं हुई है. सर मैंने इसमें वो फोकल लेंथ गिवन थी, वो डाल दिया. सर फिर वो डालने के बाद मैंने तो उसको मिरर फॉर्मूला ही तो बोलते हैं चाचा, वही तो मिरर फॉर्मूला सबसे पहले भी लिखा हुआ है. यस सर. हाँ, कंफ्यूज, मुझे पता है कंफ्यूजन होगा, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए आज का इतना टाइम पूरा मैं इसके लिए दूंगा सर. भव्या, सात्विक, रवि, आपसे हुआ कि नहीं हुआ? कर रहा हूँ अभी जस्ट ट्राई. ध्यान रखना, जो भी मिरर के सामने है वो नेगेटिव होगा. इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब नेगेटिव. और फोकल लेंथ मैंने तुम्हें बताई दी थी, कॉनकेव की माइनस में होती है, मतलब नेगेटिव होती है, एंड कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव. अभी कौन कौन रह गया यार? देखो, विराज ने कर लिया अंतरिक्ष प्रथम, चिंत्य, कार्तिक सिरोही नहीं किया. कार्तिक सिरोही, कार्तिक डन, कार्तिक सिरोही डन. गाइस, एनीबॉडी लेफ्ट स्टिल एक्सेप्ट रवि? रवि को छोड़ के और तो कोई नहीं है. रवि, कहाँ टकरी गाड़ी आपकी? सर जस्ट एक चीज, एक फाइनल में कंक्लूजन, मतलब उसका जो फाइनल करो ना वो करा, जैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है बार बार मुझे इसके लिए. दिक्कत आनी नहीं चाहिए. सर हार्डली 1 मिनट, हार्डली. ओके, गाइस जस्ट गिव हिम 30 सेकंड्स. तुम चीटिंग मत करना रवि, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ईमानदारी से मुझे बता देना, ठीक है? बाकी लोगों का टाइम थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ. गाइस, पोस्ट द आंसर. सर आगे भेज दिया. मैंने बोला था कि अगर अगर कोई साइन उसके साथ नेगेटिव का आ रहा है तो नेगेटिव लिख देना, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिख देना. Okay, I am giving you one more chance, guys. Everyone, please repost your answer, but with the correct sign that has come with you. मैं ये नहीं कह रहा गलत है सही है, बट आपका जो भी आया है, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो. विराट +15, प्रथम +15, सात्विक, भव्या, अंतरिक्ष, राजवर्धन, कार्तिक. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सब लोगों से मैं एक बार एक एक करके पूछ रहा हूँ. सार्थक, ये क्वेश्चन तुम्हें क्या लगा, आसान था कि नहीं था? इजी था कि डिफिकल्ट था? सार्थक? मीडियम. अंतरिक्ष? सर इजी क्वेश्चन था. रवि? सर थोड़ा सा हार्ड, तो बहुत थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि अच्छा, कैलकुलेशन में भव्या? बार प्रॉब्लम है. ठीक, भव्या? ये बेसिक कैलकुलेशन है रवि, छोटे बच्चों की कैलकुलेशन 7th 8th वालों की, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगी. ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन बहुत छोटी कैलकुलेशन थी. भव्या, कैसा था क्वेश्चन यार, हार्ड था कि इजी था? उसमें देखो, मैं क्लास में किसी पूछता हूँ, किस रीजन होता है. हाँ, हार्ड ऑलमोस्ट. ओके, हार्ड ऑलमोस्ट हार्ड. कार्तिक सिरोही? सर नॉर्मल. कार्तिकेय मिश्रा? सर नॉर्मल. अचिंत्य? डिफिकल्ट, मीडियम, इजी? अचिंत्य? प्रथम? नहीं, क्वेश्चन कैसा था? मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा. बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? क्या घर में क्या कुछ पीछे कुछ वो तो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या? राजवर्धन, कैसा था क्वेश्चन? सो क्वेश्चन इजी था, बस स्टार्टिंग में मेरे को दिमाग में वो फॉर्मूला मिक्स हो जाता है.
मिक्स हो रहा था। ओके सात्विक। यस सर, वही फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो गई थी, वैसे ओके ही था। जो लोग ना अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझेंगे और ऐसे लिखेंगे नहीं जैसे मैं लिखता हूँ v इक्वल टू दिस, जो बोलेंगे सीधा फॉर्मूला में डाल देता हूँ, उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जो मेरे बताए स्टेप्स पे चलेंगे कि v लिखो u लिखो फिर फॉर्मूला लिखो, उनका क्वेश्चन सही होगा। ओके अब इससे पहले कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं तुम लोगों से डिस्कस करूं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पहली बात, आई वांट समवन टू रीड दिस क्वेश्चन। ओके हु विल रीड द क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। या विराज। सर आई रिक्वेस्ट, अगर आप एक बार वो फिर से बता देंगे सर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में वो नेगेटिव और जो पॉजिटिव का था सर। तो मैं कई बार बता चुका हूँ यार कि सर अभी भी जब इस हम क्वेश्चन में एफ की बात करते हैं, जब हम एफ की बात कर रहे हैं तो मैं कहीं कहीं लिखा भी था, कल भी लिखा था, रोजाना लिख रहा हूँ मैं, ये रहा कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का नेगेटिव। अच्छा क्वेश्चन पढ़ दे मेरे को कोई अभी। सात्विक आप पढ़ देना एक बार क्वेश्चन। सात्विक। Yes sir, but an object is placed at a distance of 30 centimeter in front of a concave mirror. एक मिनट u इक्वल टू -30 करेक्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No problem sir. No sir. नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। रवि No, नो sir, no प्रॉब्लम इन problem. दिस। ओके नाउ मिरर किस तरह का है सात्विक? Concave mirror. कॉनकेव मिरर की जो एफ होगा उसमें क्या साइन लगाएंगे हम? Sir, a negative. नेगेटिव। क्या बताइए कितनी दिया है? एफ कितना दिया है? Sir, 10 centimeter. 10 सेंट, सो -10 सेंटीमीटर हो गया। Yes. एफ इजिकल टू -10 सेंटीमीटर दोस्तों। और हमें यू निकालने के लिए बोल रहा है, वी निकालने के लिए बोल रहा है कि कहाँ इमेज बनेगी, बेसिकली पूछ रहा है मुझे। तुम सिर्फ एक छोटी सी बात बताओ, आप लोगों में से बहुत लोगों ने वी लिखा है 15 सेंटीमीटर, +15 लिखा है। चलो मैं मान लेता हूं ये तुम्हारा आंसर सही है, सही है। एक सेकंड के लिए मैंने बोला चलो ये आंसर सही है, बिकॉज एक्चुअली इस छोटे से क्वेश्चन से मैं बहुत सारी वैल्यू ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लर्निंग वैल्यू इसमें से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर मैं बोलूं इस हिसाब से तो m इजिकल टू -v/u, मैं वैल्यू रख रहा हूं। आपका आंसर आया 15, तो मैंने लिख दिया -15 अपॉन -30, m इजिकल टू 1/2। मेरा m पॉजिटिव आया दोस्तों, पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल बननी चाहिए। और कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज सिर्फ एक बार बनती है, जबकि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता है, इमेज उससे बहुत बड़ी बनती है। तो m की वैल्यू मोर देन 1 हो जाती है, यहां m की वैल्यू मोर लेस देन 1 है, हाफ है। सो ये आंसर गलत है। वैसे ही बोल सकता है तुम्हें आंसर गलत है, ये मैं तो करके दिखाने की कोशिश की है कि ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। ये आंसर गलत है। तुम बोलोगे सर हमने तो बिल्कुल आपके बताए तरीके से किया है, चलो वो भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं। सो व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज 1/v plus 1/u is equal to 1/f, or we can say 1/v is equal to 1/f minus 1/u। वैल्यू रख दो, 1/f कितना है? -10 माइनस 1/u कितना है भाइयों? -30। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे वहां पे दूसरा वाला, तो इट विल बिकम -1/10 प्लस 1/30। एलसीएम आएगा 30, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप 30 बनाने के लिए, लाइक डेसिमल बनाने के लिए, तो 1 है। सो -3, क्योंकि ये माइनस है, -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2/30 इक्वल टू -1/15, -1/15। सो हमारा आया क्या? 1/v इज इक्वल टू -1/15। सो v इज इक्वल टू -15। अब मुझे बताओ कहां कहां गलती करी तुम लोगों ने, कहां मिस्टेक? ये छोटा सा इतना सा क्वेश्चन था। सर मैंने v को 1/15 ले लिया, 1/-15। नाउ यू गाइस नो व्हाई आई एम सेइंग कि स्टूडेंट गलतियां करते हैं। नाउ यू नो, नॉट अ सिंगल पर्सन हैज गॉट इट राइट। ओके,
So we need to spend time on this, and I think we should, and we will. All right, I'll give it time. All right, just give me a moment. I think light gayi hai, but I am with you online. All right, next question. Next question, just wait for it. Chat box. जान क्या कर रहे हो? अच्छा Okay, all those who are done, please confirm करो, डी लिखो. Yes guys, others. So फॉर्मूले नहीं हटाएंगे, सिर्फ जो जो क्वेश्चन लिखे हैं वो हटाएंगे. कार्तिक रीपोस्टेड. बहुत लोगों ने अब तक रिज्वाइन नहीं किया है. हाँ, रीपोस्टेड. हाँ, जस्ट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. AWHO लाइट गई ना, बहुत सारे लोग आउट हो गए. ओके गाइस, जो लोगों ने कर लिया है 1 मिनट रुक जाओ, रिवाइज करके देख लो एक बार. हो सकता है क्वेश्चन अप डाउन हो जाए, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए. Okay, I have a question. आई एम मेकिंग ए स्टेटमेंट. जिन लोगों ने अभी न्यूमेरिकल कर रहे कर लो. कौन कौन अभी लगे हुए, किसका बचा हुआ है? ठीक है, सबके साथ ही डिस्कस करता हूं मैं. विराज डन, अंतरिक्ष डन, रवि डन, अचिंत्य, सात्विक,
भव्या, रवि, सार्थक, बताओ भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अचिंत्य डन। सार्थक, सार्थक हो गया, सात्विक, रवि, सर भी कर रहा हूँ उससे। सर हो गया। ओके, राजवर्धन। यस सर, ओके, इस सब क्वेश्चन में लाइट चली गई थी। थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। दोबारा ये सब लोग जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, इनको क्वेश्चन चला गया होगा, इनका मिट गया होगा क्वेश्चन। मैं दोबारा से पोस्ट कर रहा हूँ और मैं इस क्वेश्चन को अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आई थिंक कार्तिकेय नहीं आया अभी तक दोबारा से। ओके दोस्तों, मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ध्यान से सुनना इन स्टेटमेंट्स को ना, और अपने दिमाग में घुसा लेना इनको। सर आंसर पोस्ट कर देना कर लिया। अभी नहीं, पहले मैं कुछ कर रहा हूँ। तो अभी तक देखो दोस्तों, अभी क्वेश्चन को सॉल्व मत करो तुम लोग, रुक जाओगे जिन लोगों का नहीं हुआ। एक बात देखो इधर, अंतरिक्ष ध्यान से देखो, जब भी इमेज मिरर के सामने बन रही है तो हमेशा आर एंड आई है, यस और नो? यस सर। और जब भी मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल डायरेक्ट है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सार्थक ध्यान दो, जब भी मिरर के पीछे, सो आई एम जस्ट मेकिंग ए बिग स्टेटमेंट हियर, जस्ट पे अटेंशन हियर, नोट। Any image in front of mirror, any image in front of mirror is real and inverted. टोटल हमने 8 कंडीशंस देखी थी, सारी कंडीशंस में देख लो 5 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। 5 कंडीशंस, दोनों मिरर्स को मिला के 5 कंडीशंस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एनी इमेज बिहाइंड द मिरर is virtual and erect. मैंने अब तक कोई स्टेटमेंट मैग्निफिकेशन के बारे में नहीं दिया। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो बिहाइंड द मिरर, तो फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ मिरर आर आई, बिहाइंड द मिरर वी एंड ई। ये बात पक्की बात, पते की बात रख लो। ऐसा हो सकता है कि भाई अब जब वी एंड आई की बात हो रही तो सिर्फ एक कंडीशन है जो कि कॉनकेव मिरर की कंडीशन है, उसमें जब भी इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगी वो हमेशा मैग्नीफाइड होगी, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी होगी। ये बात सिंपल है। इसके बारे में मैंने कल बात बताई थी तुम्हें, टोटल मिला के इधर 5 कंडीशंस बनती हैं, जिसमें से एक कंडीशन के अंदर तो सेम टू सेम है, m इज इक्वल टू 1। इसमें से कल भी समझाया था मैंने कि जब C पे होगा ऑब्जेक्ट तो m इज इक्वल टू 1 होगा, ये वाली कंडीशन। यहां इधर चलोगे तो m छोटा हो जाएगा, m इज लेस देन 1, और अगर इधर जाओगे तो m इज ग्रेटर देन 1। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट तो नहीं दोस्तों? ये देखो अब बिल्कुल हमने थ्रेड बेयर कर दिया इसको। अब छोटी सी प्रॉब्लम जो तुम्हारी बची हुई है वो सिर्फ न्यूमेरिकल में बची हुई है, जिसमें मुझे तुम्हें प्रैक्टिस देनी है। अदरवाइज हम इतना समझ चुके हैं कि हम यहां से इधर जाते हैं तो हमारा मैग्नीफिकेशन बढ़ता जाता है, यहाँ बढ़ता है, और इधर चलते मैग्नीफिकेशन छोटा होता जाता है। इधर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एग्जैक्टली सेम, यहां तो हमेशा छोटा ही होगा, ऑलवेज स्मॉल, m इज इक्वल टू लेस देन 1 कॉन्वेक्स में। और सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें वर्चुअल है,
इलेक्ट है एंड m इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन 1। सो टोटल 8 कंडीशंस हैं, 8 कंडीशन में से 5 आ रही है, 3 वी है। उन 5 आ रही में से एक में मैग्निफिकेशन इक्वल है, बाकी 2 में कम है और 2 में ज्यादा है, और बाकी 3 वर्चुअल एरर में v में हमेशा कॉन्वेक्स में छोटा है, m लेस देन 1 है, इधर m हमेशा ग्रेटर देन 1 है। ओके, नाउ ये स्टेटमेंट बहुत मैंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। जब भी इमेज मिरर के पीछे बनेगी, अब देखना है कौन से मिरर ने बनाई है, कॉन्वेक्स ने बनाई है कि कॉनकेव ने बनाई है। कॉनकेव ने बनाई है तो बड़ी होगी, और कॉन्वेक्स ने बनाई तो छोटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान में रखना आपने। ओके, इस क्वेश्चन को मैं कर दूं फटाफट। हाँ, ऑल राइट, अंतरिक्ष आप पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन। या ओके, बिफोर दैट पोस्ट द आंसर्स, सर post the answer everyone, आंसर पोस्ट। हाँ, अब बताओ अंतरिक्ष जल्दी। Yes, sir. An object is placed at a distance of 12 centimeters in front of a concave mirror, and the image formed is behind the mirror at a distance of 48 centimeters from the mirror. एक मिनट, कॉनकेव मिरर में इमेज हमेशा कैसे बनती है, बड़ी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, तो इसने बोला इमेज बिहाइंड है तो v इज इक्वल टू प्लस 48। ओके, हाँ, क्या क्या पता करना हमें? What is the nature of the image? Calculate the focal length of the given mirror. फोकल लेंथ तो इससे निकाल देंगे। पहली बात तो नेचर ऑफ इमेज तो भैया वर्चुअल इरेक्ट है, वो रही वर्चुअल इरेक्ट एंड Yes, sir. वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नी, Enlarged. एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। ओके, ये अब यार ये तो बच्चे वाली बात कर रहा है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v कितना है 48 प्लस 1/-12। तो इसको कर लो कैलकुलेट, 1/48 माइनस 1/12, क्या आएगा 48, 1 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 3/48 माइनस 3/48 16। सो 1 माइनस 1/16। तो f इज इक्वल टू माइनस 16 सेंटीमीटर। आंसर चलो, कल फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, और बहुत लोगों का अच्छा आया। बिल्कुल, अंतरिक्ष करेक्ट, सात्विक करेक्ट, अचिंत्य करेक्ट, सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। विराज करेक्ट, विराज आपका ये आंसर गलत है, रियल इन्वर्टेड। ओके, चलो कल बाकी हम बात करते हैं इसके बारे में। राइट गाइस, बाय बाय फॉर नाउ, वी मीट टुमारो, विल कंटिन्यू दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई विल सेंड सम क्वेश्चंस, प्लीज डू दोस। Bye, sir. बाय 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 बाय। Thank you, sir. Bye.